I hope you all are fine. As you know, our Busy 21 release 6.0 arrived in the last week, and as you know, you have been waiting how to enter the tax inclusive voucher in Ghana VAT with the new tax rates and surcharge. Means GAT fund, NHIL, COVID and VAT, COVID levy and VAT. Okay, this option is now available in our latest release Busy 21 release 6.0. In this session, we will discuss this option. How can you use this? Okay, so first, let me share my screen. According to current scenario, VAT 3% and COVID levy 1%. You are able to do the transaction in Busy very easily. Okay, but the issue was coming in the new tax rate mechanism. Like NHIL GAT fund and COVID levy, the tax inclusive billing in with these tax rates. Okay, with this tax surcharges. Now I'll show you. So first you have to go in configuration, feature and options, VAT GST. So you have to enable the additional surcharge option first and enable this option in a SRS standard rate scheme. So this option is mandatory. So you have to enable first this option in VAT configuration and save. After this, you have to go in master, modify the sale types of VAT 12.5%. So you have to mention that surcharge rate here 6%. After this, go in tax category, modify the tax category 12.5% and mention the rate of surcharge 6% here. Okay, and save this. After this configuration, you have to select the tax category in item master is 12.5% and save. Now we will create the sales voucher. Add the sales voucher on date 1st of January. Select the sales type, VAT 12.5%. Select the party here and select the item one. If your voucher is tax exclusive, then you have to apply the bill sundry like GAT fund first, NHIL, COVID levy. And let me tag पवन जी, हमको इसका आपका ना इसमें टैग करते ना, ये चारों जो है एक साथ टैग करते you can tag also. You have to go in configuration option, tag bill sundry voucher wise. So you can tag all the bill sundry from this option. So select here sales type. The first bill sundry is GAT fund 2.5, NHIL second bill sundry, and the COVID levy is third, and the last is VAT. Okay. Right. After this, you have to you can generate your sales voucher. So if your voucher is tax exclusive, then you have to select the sales type, select the party and choose the item, mention quantity and amount, price, and save the voucher. This is your tax exclusive billing. Okay. Full screen not coming, पवन जी, थोड़ा सा आपका स्क्रीन पूरा नहीं आ रहा. पूरा नहीं आ रहा, एक सेकेंड. Let me share you again. ठीक है, अभी ठीक है, खाली वो स्क्रीन नहीं आ रहा, सेल्स का स्क्रीन में नहीं आ रहा था. बटन नहीं आ रहा था नीचे सेव उसका. ओके, ठीक है, अब इसको कर दीजिए. अच्छा, if you creating a tax inclusive billing in sales voucher, then you have to select the sales type here and party, material center, and select the item, mention the quantity and price. Okay, when you save the voucher, this warning will come. Okay, the item price has been recalculated as per SRS scheme. Do you want to recalculate them now? So if you click on yes, then your bill will be your voucher will be changed as to tax inclusive. Okay, if you click on no, then your voucher will be
save as tax exclusive billing. But if you want to generate bill with tax inclusive billing, then you have to you can click on this option also, apply SRS. Okay, this warning will come and you have to click on yes. Now see, the price is reduced and will calculate according to your tax transaction, tax calculation, and this voucher is changed to be as tax inclusive. You can save. And your bill will be generated. Okay. तो पवन जी इसमें हमने तो बोला था आपको ये कि वो ऑप्शन पहले ही देंगे, जैसे आपने पहले दिया है ना कि जिसको एसआरएस करना है वो पहले इनेबल कर लेगा एसआरएस। तो एसआरएस करने के बाद ये ऑप्शन आना नहीं चाहिए ना इसको। अगर जो नहीं करेगा उसके लिए तो चलेगा, वो टैक्स एक्सक्लूसिव प्राइस डालेगा, लेकिन जो इनेबल कर देगा एसआरएस को उसको आपको करना था, ऑटोमेटिक होना था ये वैल्यूएशन जो कर रहे हैं। वो यहाँ पर नहीं दिखाना था, 100 सीडी लिखा है तो मतलब 100 सीडी उसके ऊपर ही 100 सीडी दिखे, स्क्रीन पर 100 सीडी दिखे। सर जो हमारा मतलब टेबल्स जो बने हुए हैं ना, वो आप मतलब वो भी ना छिड़े, ठीक है। और ये आपका जो ऑप्शन ये भी इम्प्लीमेंट हो जाए, दैट्स व्हाई वी इम्प्लीमेंटेड दिस टाइप। ओके। तो रिकैलकुलेशन, क्योंकि रिकैलकुलेशन थोड़ा सा कंफ्यूजन पैदा करेगा यहाँ के लोगों को। कंफ्यूजन सर इसमें क्या हो गया, आप जब वाउचर आप सेव करेंगे यहाँ पर, when you will save the voucher, this option is you can click on this option in the case of tax inclusive. अगर क्योंकि कई आइटम और आपकी आइटम होंगे तो उसमें कंफ्यूजन उनको नहीं होगा। जैसे कि आप एग्जांपल दीजिए। अगर 100 रुपए का कोई, एक मिनट मैं क्लिक नहीं कर पा रहा हूँ, 2-3 आइटम करके दिखाइए ना, एक बार 2 आइटम करके दिखाइए ना। Now see, we are selecting 2 items. Okay, first is 5 item ABC, one quantity with 100 price, and the another item is one quantity with 200 price. Now see, click on apply SRS. Now see, the option is coming. The voucher is changed to as tax inclusive. Okay, valuation. This option will work on a voucher level, not item level. Okay. Voucher levels. Yeah. Okay. It will work on voucher level. Okay. तो ये तो ठीक है, इतना इसी से काम चलना पड़ेगा। एंड मैं सोच रहा था कि अगर वहां पर केवल ऑप्शन हो जाए ना तो उनके लिए ये ऑटोमेटिक अगर इसमें आपको यस भी नहीं करना है, इस ऑप्शन को, मतलब इस ऑप्शन को आपको एंटर भी नहीं करना है, तब भी आप ये ऑप्शन जब वाउचर सेव करेंगे आप, when you will save the voucher, then warning will come automatically. You can see at the time of saving the warning will come. Okay, as your choice, you can select the option yes or no. If you want to calculate the if you want to calculate tax inclusive, then you click on yes. Okay. If you want to generate bill with tax exclusive, then you can click on no. Okay, you have both the options. This is your choice. ओके, एक काम करेगा, मतलब काम तो कर रहा है। इनवॉइसिंग में फील्ड देना हो तो फील्ड कैसे आएगा? ये फील्ड जो रिकैलकुलेट करेगा, ये सेल प्राइस हो जाएगा, ये सेल प्राइस हो जाएगा। ये जो 10 अपने प्राइस लिखा है 10 रुपए 20 रुपए, 10 रुपी फील्ड में अगर, let me show you. See, this is the tax inclusive bill, and you can check the preview.
वाउचर बिल में कस्टमाइजेशन तो हमारे अकॉर्डिंग हम कर सकते हैं, उसकी नो प्रॉब्लम सर, ठीक है। नहीं, ऊपर भी 100 रुपये लाना है सर। ये जो 83 रुपये वो दिखा रहा ना, वहाँ एडवांस 100। एडवांस एडवांस बिल जो होगा ना उसमें हम कन्फिगर कर देंगे, डोंट वरी। अच्छा, हम्म, बाकी नीचे में टोटल 300 आ जाएगा, उसके बाद एक कैलकुलेशन टैक्स का आएगा, किस तरीके से? और ये टोटल टोटल 300 भी होगा। देखिए, इसमें हम एक काम करेंगे कि हम्म इसमें जो कॉलम खोल लेंगे, जो कॉलम है ना, प्राइस का कॉलम है, प्राइस के कॉलम के बाद टैक्स का कॉलम खोलेंगे, हम्म ठीक है। ये करके टोटल बिलिंग कर सकते हैं। एक तरीका ये है। दूसरा हम्म तरीका ये है कि ये इस पे ऊपर 100 रुपये दिखाएगा, जैसे कि 83 रुपये 86 पैसे दिखा रहा है, हम्म उसको 100 रुपये दिखे। हम्म। और 167 रुपया है, उसको 200 रुपया So दिखे। this is और possible in यहाँ advanced format, you know that you can customize it. एडवांस फॉर्मेट। जी 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 जी, Hmm. ठीक है सर। तो Hmm. ये तो हो गया सर, ये तो काम हो जाएगा। तो मैं इसको सबको डाल देता हूँ, सारे लोगों को दिखा देता हूँ ये Yeah, of course. डेमो। हाँ, तो इसको इम्प्लीमेंट कर दूंगा मैं सबका, या फिर दिखाऊं, डेमो No, दिखा yeah, दूं उनको? yes, you can implement, and I will share you document also for this. हम्म। तो Okay. आप शेयर कर दीजिए, ताकि मैं लड़के को दिखा दूं कैसे काम करता है। तो शेयर कर दीजिए वो डॉक्यूमेंट, तो मैं लड़के को, अपने इंजीनियर को दिखाता हूँ, तो सारे हमारे कस्टमर को इम्प्लीमेंट कर देगा ये। Okay, okay. ठीक है, तो 6 में चलेगा, ठीक, करेक्ट? 6 में जी चलेगा। जी जी। जी। You have to mention अच्छा। 6 rate as in surcharge option. अच्छा, जी 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 जी। पवन जी और बीरेन जी से मेरी काम हो रहा, कुछ कर रहे हैं मेरे लिए। हम्म तो उन्होंने बोला कि कोई कुछ फंक्शंस है जो बीजी वाले देंगे। तो हम्म। इस रिगार्डिंग आपसे बात हुई थी, कमल जी से बात हुई थी उनकी। कौन से ऑप्शन बताइए एक बार थोड़ा। उसमें उन्होंने बोला था कि क्या है कि वो मल्टी मल्टी करेंसी वाला जो नई कहानी हो रही थी, जिसमें डेटा जा नहीं रही है, हम्म। वो अपनी बैलेंस अपडेट नहीं कर रहा है। तो उसमें उन्होंने बनाया हुआ है, कोई वैल्यूएशन बनाया हुआ है। तो उस वैल्यूएशन को वो क्या कर रहे हैं, उस वैल्यूएशन को वो इम्प्लीमेंट कर रहे हैं, लेकिन वो बीजी का बाय डिफॉल्ट जो मल्टी करेंसी का ऑप्शन है, हम्म। उसमें भी एक वो पॉपअप खुल जाती है। वो बोल रहे हैं कि उनके बीजी तरफ से आपके यहाँ से वो करेंगे, तो कोई 6.1 आने वाला है। वो हेल्प डेस्क टीम तो पे आप डिस्कस कर लेना एक बार ना, ठीक है, अच्छा। वो बता देंगे, इन्फॉर्म कर देंगे आपको। अरे तो करोगे सर जी, आप ही ना, आपने किया ना, तो आपको आइडिया होगा ज्यादा। कोई नहीं, आप चलो ठीक है, मेरे को कल मॉर्निंग में एक बार कांटेक्ट कर लेना, मैं आपको बता दूंगा, ठीक है। ठीक है, वो करेंगे, खुद कांटेक्ट करेंगे, बीरेन जी करवा रहे हैं। मैं वही सोचना कि कब 6.1 उसमें कब ला रहे हैं आप लोग, ओके ओके तो ओके उसके लिए। ठीक ओके। है पवन थैंक जी, तो और इसमें कोई और कोई नो, कहानी? ओनली दिस ऑप्शन, ये आया था अभी, ठीक है। Hello, sir. सो थैंक यू, Hello. थैंक्स फॉर कमिंग। Hello, sir. हेलो, यस सर। Yes, I have seen the demonstration you have given. Okay, but Yeah. it is not. It is currently what I have seen. It is not helpful to. It hasn't solved the problem I was talking about initially. Okay. Yeah. Now, the demonstration you gave is for the standard entry of the standard. Yes sir. Tagging bill summary and all that. We can do that when you are entering a standard invoice. But when you are entering a POS invoice, advanced POS. Let's go to voucher. Yeah, can you hear me? Yes. Tell me, you want in print or display? Come again? You want to print on or display? No. What I am talking about is when you configure the voucher. Please can this option? Yeah, this option will work on the standard billing. This option will work on standard voucher series, not in POS. Yes, okay, but what I'm saying is for standard, even before this, we could still do it. My concern is for POS, because for standard we can do we can tag bill sundry and it will work without having to do the reverse calculation of the. My concern is with the POS. You want to calculate this in POS voucher series, no? Yes. Okay, send the feedback. Send the feedback at the feedback at the biz.in. Send the feedback on this mail ID. Okay. No problem. But now we have only this option for this. You can create bill like this way.
Mr. Sandy. Okay. Yes. Yes. He gave Okay. your number to one lady to call for interview. Okay, sir. Any other query? No. Okay, sir. Okay. Thanks for attending this session. पवन जी एक मिनट पवन जी, Yes, sir. अच्छा एक चीज बताइए मुझे, एक आइटम मास्टर खोलता हूँ, एक आइटम मास्टर खोलिए ना, कोई भी आइटम वन का मास्टर खोलिए ना, आइटम मास्टर मॉडिफाई मोड में। Yeah. ये पैकेजिंग यूनिट हमने किया है, Hmm. इसके अंदर ये लिखा है टैक्स इंक्लूसिव सेल प्राइस। अगर मैं करता तो मैं चेक किया था, तो जब इसको करता हूँ टैक्स इंक्लूसिव सेल प्राइस करता हूँ, तो वो जब हम टैक्स में लेते हैं, सीज चूज करते हैं, तो ऑटोमेटिक उसमें घटाता है, करेक्ट? ये आपका पैकेजिंग यूनिट से इसका मतलब नहीं है। ये आप हाँ, सेल पैकेजिंग, टैक्स इंक्लूसिव हाँ, सेल प्राइस है। इसका ऑप्शन का यूज जो कैसे होता है कि अगर आप इस ऑप्शन को यस करते हो, तो जो आपने मास्टर के अंदर सपोज 100 रुपए सेल प्राइस दिया हुआ है ना, और आपने बता दिया तो टैक्स इंक्लूसिव सेल प्राइस है ये। तो चाहे आप हाँ, आइटम लेवल पे आप टैक्स एक्सक्लूसिव वाली सेल टाइप लो या इंक्लूसिव वाली सेल टाइप लो, आपका जो प्राइस है वो 100 ही रहेगा। 100 रहेगा। अच्छा, दूसरी चीज ये प्रॉब्लम आ रही है मुझे, ये पैकेजिंग प्राइस को अपडेट करना है, कैसे होगा? पैकेजिंग प्राइस को अपडेट कराना है आपको सारे मास्टर्स का या हाँ, फिर ओनली वन? जैसे हम कोई कंपनी है वो बॉक्स में खरीदती है, ठीक है, हम्म। तो बॉक्स में खरीदती है तो वो बॉक्स की प्राइस कैसे कैलकुलेशन होगी कॉस्टिंग में? बॉक्स की प्राइसिंग कैसे कैलकुलेट होगी? हाँ, बॉक्स की प्राइस तो क्या परचेज प्राइस कह रहे हैं आप, सेल प्राइस कह रहे हैं? परचेज प्राइस जैसे कॉस्टिंग करते हैं ना हम लोग, हाँ ऑटो कॉस्टिंग जो होती है, हाँ। उसमें पीसेस में सब मेन यूनिट पीस में है, हम्म और पैकेजिंग यूनिट बॉक्स में है। हम्म लेकिन हम जब बाय डिफॉल्ट हमने कर रखा है, जब भी परचेज करेंगे तो बॉक्स में करेंगे। तो हम्म बॉक्स की प्राइस हमने, और वो जब कस्टमर देता है मुझे बॉक्स की प्राइस देता है, तो हम्म बॉक्स की प्राइस जब डालता हूँ, लेकिन कॉस्टिंग जो शीट बनती है उसमें हम्म। पीसेस में कैलकुलेशन उसकी कॉस्टिंग होती मेन है। यूनिट में आपकी शीट बनेगी, जो स्टॉक स्टेटस रिपोर्ट जो होगी वो मेन यूनिट हाँ, में बनेगी। मेनली मेन और अल्टरनेट में बनती है। पैकिंग यूनिट में सिर्फ आपको खाली बैलेंस ओनली में स्टॉक दिख जाता है। ठीक है। कॉस्टिंग तो आपकी वैसे ही पता लग जाएगी, आप बॉक्सेस से भी कैलकुलेट करोगे तो कॉस्टिंग कोई रिपोर्ट बना देते हैं आपकी, एक कस्टम अरे कॉलम्स नहीं बना नहीं, देते रिपोर्ट नहीं, जानते क्या हो रहा है आपका, मैं आपको बताता हूँ क्या प्रॉब्लम आ रही है। हैं। प्रॉब्लम ये आ रही है कि हम बॉक्सेस में खरीदते हैं, बॉक्सेस में बेचते हैं, लेकिन हम्म मेन यूनिट हमारे पीसेस में। तो रिटेल में कोई बंदा आता है तो उसको रिटेल प्राइस देते हैं, तो हम्म रिटेल प्राइस में मान लो कि कोई आइटम का प्राइस 10 रुपया है हम्म रिटेल में। हम्म लेकिन बॉक्स में हम क्या करते हैं कि वो अगर 10 पीस का बॉक्स पीस है, तो हम हम्म उसको 80 रुपया में बेचते हैं, यानी 20 रुपया कम में बेचते हैं। तो हमने उसको क्या कर रखा है, सेल प्राइस हमने कर रखा है 80 रुपया। पैकेजिंग में बॉक्स जब चूज करेगा 80 रुपया करके आएगा, और जब पीस चूज करेगा तो उसको 10 रुपया दिखेगा, एक पीस का 10 रुपया दिखेगा, ठीक है। एक अब एक हम